Okay, so we were discussing in the last lecture minimization of errors, and there are so many ways. We can say total 9 ways by which we can minimize the errors. And what type of error which can be possible to minimize? So it is a standardized error which can be minimized. The first way is by calibration of apparatus and application of correction factor. Second, running a blank determination. Third is running a control determination, use of independent method of analysis. Then next one is running parallel determination and standard addition method. So this first 6 method that can be applied in the titrimetric analysis. However, the remaining 3, that is the internal standard method, amplification method and isotopic dilution methods, are involved in other categories of analytical techniques. Okay. So last day we have seen in detail what is the calibration of apparatus, what are the correction factors, how you can apply this correction factor, and that will going to eliminate your systematic error. The second, we went through this running a blank determination, where we have taken one example of what benzoic acid assay, and we have seen how the reagents may incorporate some impurities, and that to be nullified by using blank determination. Now today we will focus the third way by which we can minimize the error. It is nothing but called as a running a control determination. Now what is a running a control determination? See, now here we are going to use one standard substance. Now this standard substance is actually called as a control. Now what is this standard substance and from where we can get it? So you can see the standard sample include the primary standard. We know the example of the primary standard like sodium oxalate, potassium hydrogen phthalate, arsenic trioxide, benzoic acid. So this category of substance are actually, we call it as a standard substance, because you know what is the reason, what are the characteristics required for the substance to be categorized as a primary standard. Other than these, the ores, ceramic materials, metal ions like iron, steel making alloys, and some non-ferrous alloys are also categorized as a standard samples or standard substances. They are being, have some logos on their product. Logos means what? They are categorized as standard by using some hallmarks, राइट जैसे हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस रहते हैं जिसमें ICI से ISI अगर मार्क रहता है तो वी कॉल इट एज ए स्टैंडर्ड. ओके, तो सिमिलरली फॉर द सब्सटेंस टू बी कैटेगराइज एज ए स्टैंडर्ड in the UK, okay, so there is a one category, one hallmark that is used is a BCS certified reference material, CRM in short it is called as. So it is supplied by Bureau of Analyzed Sample, Newham Hall, UK. Then second category in European standards, that is a Euronorm certified reference material, in short ERCM. So अगर आपके कंपाउंड में आपके जो रेफरेंस सब्सटेंसेस रहते हैं उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड मार्क है BCS या यूरोनॉर्म के, तो हम उस सैम्पल्स को क्या कंसिडर करते हैं? वी कॉल इट एज ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस. ठीक है, तो what is the way is running a control determination. Now running a control determination involves the use of this standard substance. So अब हम क्या करेंगे? Now suppose we have a one sample. Okay, sample किसका है? Suppose you have a sample of aspirin. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक सैम्पल एनालिसिस करने के लिए आया हुआ है, एंड व्हाट इज दिस सैम्पल इज, इट इज़ अ एस्पिरिन. नाउ यू वांट टू perform a titration over this aspirin, and after performing a titration, what will be the result? The result will be is in a form of a percentage purity, कि जो सैम्पल एस्पिरिन का आपको मिला है इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है. सो यू हैव अप्लाइड अ टाइट्रेशन मेथड एंड यू कम टू अ वन पर्टिकुलर. सर मनीष ज्वाइन नहीं हुआ है सर, वो उसका मैसेज आ रहा है सर ज्वाइन होने के लिए. ओके, ठीक है, अभी ज्वाइन हो गया वो. सो नाउ रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन, एंड अभी मैं यहाँ पे बता रहा था वी हैव वन एग्जांपल. और कौन सा एग्जांपल है? इट इज़ अ एस्पिरिन जिसका सैंपल आपको दिया गया है. यू
are asked to perform the analysis of this aspirin. आपने एक titration method perform की aspirin के ऊपर and you come to the conclusion that you got aspirin 98.02% pure percent weight by weight pure. ये आपको रिजल्ट मिल गया. गॉट इट? ये समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? हाँ सर. ठीक है, आपको क्या दिया गया था? इट वॉज गिवन यू एस्पिरिन. आपने इसके ऊपर परसेंटेज प्योरिटी परफॉर्म की एंड कितना मिला आपको? 98.02% वेट बाय वेट आपको प्योर एस्पिरिन मिल गया बाय सर्टेन एनालिसिस. कौन से एनालिसिस किया? यू परफॉर्म अ एनालिसिस वाया टाइट्रेशन. नाउ दिस इज एस्पिरिन सैंपल था. ये एस्पिरिन का कौन सा फॉर्मेट आपको मिला दिया गया था? इट वॉज अ सैंपल. So now what you will do, you will perform a one control determination. Now what is this control determination? Here you will going to take, you will going to take a standard aspirin. Now we call it as a standard. Okay. एक आपने स्टैंडर्ड एस्पिरिन ले लिया. सर. यस. आकांक्षा को ऐड करो. हाँ, वो रहने दो थोड़ी देर. आकांक्षा को ऐड they will करो. going to wait. You want to learn or you want to add him first, add her first. हाँ, okay. तो थोड़ा वेट करेंगे, वो लोग लेट आए ना, so they have to wait. ओके. So now you have a standard aspirin. ठीक है, आपने इस स्टैंडर्ड एस्पिरिन कहाँ से मिला? यू गॉट इट फ्रॉम द मार्केट, जो BCS सर्टिफाइड स्टैंडर्ड एस्पिरिन हम कहते हैं. ठीक है, सो यू हैव टेकन दिस स्टैंडर्ड एस्पिरिन, you perform again the titration, okay, and you come to a one conclusion, that is a result that it is 99.99% pure. कितना परसेंट प्योर मिल गया आपको? 99.99% pure, because it was a standard, so it is definitely give you the correct result, 99.99% pure. तो अब आपके पास दो रिजल्ट है. एक आपके पास में एस्पिरिन है जो आपने सैंपल करके यूज़ किया, that is given in a green color you can see, and दूसरा आपके पास में एक एस्पिरिन है जो स्टैंडर्ड सैंपल था और जिसकी परसेंटेज प्योरिटी आपने एक टाइट्रेशन मेथड से परफॉर्म की और वो कितनी मिली आपको? 99.9% प्योर मिल गई. नाउ टेल मी, ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला. What is this formula? You can see in this box. What is this formula? Result found for the standard divided by result found सर यू for आर the नॉट unknown. ऑडिबल. सबको मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही? सबको हेलो? सब बीच में ब्रेक हुई थी बट अभी आ रही है आवाज. सर आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक होती रहती है सर. It might be internet connections. Okay, now I am using a college internet that is of BSNL, having whatever the broadline facility. Okay, so I am not using my mobile right now. I am using my college landline, LAN network. So ये जो है वो अभी इससे ज़्यादा स्पीड हमारी कॉलेज नहीं दे रही. ठीक है, सो माइट बी बिकॉज ऑफ दैट, हो सकता है. अगर कहीं पे आता है तो फिर मुझे ऐसे ही बता दीजिए, मैं थोड़ा सा स्टॉप हो जाऊंगा. नाउ इज दिस ओके? शैल आई कंटिन्यू? यस यस सर. सर. ओके. यस सर. सो रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन, आपको ये चीज़ समझ में आई. आपके पास में एक सैंपल है और आपके पास में एक स्टैंडर्ड है. कंपाउंड का नाम क्या है? एस्पिरिन. कौन सी मेथड आप परफॉर्म करें? यू आर परफॉर्मिंग अ टाइट्रेशन. जो सैंपल है उसका रिजल्ट कितना है आपको? दैट इज़ अ 98.02%. इतना आपको रिजल्ट मिल गया सैंपल का. एंड जो स्टैंडर्ड है उसका रिजल्ट कितना मिला आपको? सो यू कम टू द रिजल्ट ऑफ 99.99% वाया टाइट्रेशन मेथड. नाउ यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इसका फार्मूला यूज़ करना है. फार्मूला क्या है? रिजल्ट फाउंड फॉर द स्टैंडर्ड डिवाइड बाय रिजल्ट फाउंड फॉर अननोन इज इक्वल टू weight of a constituent in a standard डिवाइड बाय x. तो कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करते हैं तो
इट वाज सेड दैट आपको क्या करना है, एक वेट अमाउंट सब्सटेंस मेजर करके टाइट्रेशन में यूज़ करना है। तो सपोज हमने 0.5 ग्राम यूज़ किया था, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड एस्पिरिन। तो हमारा जो सैंपल है वो भी हमने नियर अबाउट उतना ही यूज़ किया था, दैट इज़ अ 0.5 ग्राम, ठीक है। बट इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। सो यू कैन फाइंड आउट द एक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सो इससे क्या पता चल गया आपको, यू फाइंड आउट द एक्स मीन्स यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एस्पिरिन कंटेंट एग्जैक्टली। अगर आपने 1.5 ग्राम पाउडर लिया था, सो इज दैट 0.5 ग्राम एग्जैक्टली कंटेन completely aspirin, or it is containing somewhat less or nearly equivalent to aspirin? तो you can find out by using this formula. तो इस तरीके की जो मेथड रहती है इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। ओके, now next method after that is use of independent method of analysis. अब इसमें भी नाम से समझ रहा है, यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस मीन्स हम दो मेथड यूज़ करेंगे या दो से ज़्यादा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो व्हाट विल बी द एडवांटेज, एक मेथड के रिजल्ट को हम दूसरे मेथड के रिजल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। See first example number 2. Now what it is said that in example number 2, determination of the strength of hydrochloric acid solution could be possible both by titration with a standard solution of strong base and by precipitation and weighing as a silver chloride. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ रहता है, स्ट्रेंथ मीन्स नथिंग बट मोलरिटी, आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वन दैट इज़ अ टाइट्रेशन मेथड, ओके, एंड अनदर दैट इज़ बाय यूजिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज़ नथिंग सॉरी अनदर बाय यूजिंग प्रेसिपिटेशन टेक्निक, यस दैट इज़ नथिंग बट अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, तो दोनों ही तरीके से आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया and you correlated both the method. Suppose the titration method is a standard one and you are developing a gravimetric analysis method. तो आप क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन मेथड के रिजल्ट को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के रिजल्ट से कंपेयर करके चेक करेंगे। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज निखिल कल या परसों एक एग्जांपल दिया था, निखिल ने कहीं से गोल्ड परचेस किया, ठीक है, कितना उसको गोल्ड परचेस करना था, ही वांट टू परचेस 10 ग्राम ऑफ द गोल्ड, ठीक है, तो उसने 10 ग्राम गोल्ड परचेस करके लेके आया एक शॉप से। नाउ वही गोल्ड जो है उसने कोई दूसरे शॉप में जाके चेक किया, क्रॉस चेक, ठीक है, ऑन सर्टेन अदर एनालिटिकल बैलेंस, और उसको पता चला ये एग्जैक्टली 10 ग्राम नहीं है, इट इज़ समथिंग 9.5 ग्राम। सो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सो नाउ दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट वेइंग बैलेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो मेथड परफॉर्म करेंगे, एक मेथड स्टैंडर्ड मेथड होंगी और दूसरी मेथड जो कि हम शायद डेवलप करें या तो फिर कोई नई मेथड है जो हम चेक करें क्या ये मेथड रिजल्ट सही देती है नहीं देती है। तो जो स्टैंडर्ड मेथड से अगर सपोज रिजल्ट आते हैं उतने ही रिजल्ट अगर नई मेथड से भी आ गए तो हम बोलेंगे दोनों मेथड सही चीज़ बता रही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड से रिजल्ट आते हैं और नई वाली जो मेथड रहती है उसके जो रिजल्ट रहते हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो व्हाट वी कैन से दैट द न्यू मेथड इज़ हैविंग अ सर्टेन ड्रॉबैक्स, so we cannot use that method, this method is having a error, we want to modify this method. Have you got the point what I want to say? Yes, sir. Yes, sir. So this Yes, is what sir. this is Yes, called sir. as what, it is called as a use of independent method of analysis। हम इसमें क्या करते हैं, Method of analysis. दो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं और उसको आपस में कंपेयर करके चेक करते हैं। सो लास्टली इट सेज दैट इफ द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द टू
रेडिकली डिफरेंट मेथड्स आर कॉन्कोडेंट. कॉन्कोडेंट मीन्स अगर दोनों ही रिजल्ट सेम है, कॉन्कोडेंट है, then it is highly probable that the values are correct within a small limit of errors. ठीक है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल को ही आप ले सकते हैं. एस्पिरिन आपने परफॉर्म किया बाय टाइट्रेशन, एस्पिरिन आपने परफॉर्म किया ग्रेविमेट्रिक, और दोनों रिजल्ट यानी जैसे एक में आया आपको 98, दूसरे में आया 99, तो हम बोलते हैं आसपास में है. सो रिजल्ट्स आर इन अ कॉन्कोर्डेंस, दे आर नियरली करेक्ट, सो वी कैन एक्सेप्ट बोथ द मेथड. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. Now next, running a parallel determination. ठीक है, now this is generally preferred so many times. Now what is mean by running a parallel determination? Running a parallel determination means that you don't rely on one analysis. You don't rely on one analysis. What you will going to do? You will perform more than 5 analysis at a time. You will going to perform more than 5 analysis at a time, and you will check the results obtained by that 5 samples by 5 analysts, and you will compare the results among themselves. So इस तरीके की जो मेथड रहती है, that is called as running a parallel determination. Now what is that? Let us take the one example. Suppose हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में. ठीक है, we are performing a one practical in the lab, titration again, and we are finding out the assay of aspirin. ठीक है, तो हम 5 लोग ले लेते हैं. सपोज P1, क्या कर लेते हैं हम इसको, P1, then P2, then P3, then P4, then P5. ठीक है, now what is this P1, P2, P3, P4, P5? ये सब पर्सन्स है. P is standing for person. ओके, तो हमने 5 लोग ले लिए, तो 5 people. P1 उसका रिजल्ट चेक करते हैं. ओके, so what is the result given by the P1? It is suppose 98%, 98.12%. Result given by P2, that is 98.87%. Result given by P3, suppose 99.46%. Result given by P4, that is suppose 87.46%. And the result given by P5, it is 101.24%. पांचों के रिजल्ट मिल गए आपको. होप यू कैन सी द स्क्रीन. ओके, सो पांचों के रिजल्ट में किसका रिजल्ट सबसे वेरी दिख रहा है आपको? किसका? एक नहीं बताया मुझे आंसर. किसका रिजल्ट सबसे वेरी दिख रहा है? P4 का. यस, B4. 87.46% है उसका रिजल्ट. सो इट इज़ हाईली वेरिएबल. नाउ यू वांट टू जस्टिफाई कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है. सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू? क्या बोलेंगे आप? क्या ये रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं है? क्या बोलेंगे आप? हाउ विल यू गोइंग टू एनालाइज कि जो आपने मेथड अप्लाई की है, इज इट गिविंग अ करेक्ट रिजल्ट? बाकी पहले तीन तो बहुत अच्छे है ना. दिस फर्स्ट 3 रिजल्ट आर नियरली एक्यूरेट. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि तीनों रिजल्ट तो हमको सही कंक्लूजन ये दे रहे कि बहुत अच्छे. इवन द फिफ्थ वन वो भी काफ़ी कुछ पास में है. इट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड, बट सिर्फ एक ही रिजल्ट ख़राब है. सो व्हाट यू कैन से, मेथड इज़ करेक्ट और बैड? क्या बोलेंगे आप? मेथड ओके है क्या बैड है? कैसे चेक करेंगे? हाउ विल यू गोइंग टू एनालाइज? You can read the graph, you can read the paragraph, and you can find out the answer also. कैसे पता करेंगे? देखो पैराग्राफ पढ़ो and you can find out the answer also. मिला कुछ आंसर कहीं पे, कुछ पैराग्राफ में पूरे?
मेथड फिर से रिपीट करेंगे? पूरी प्रोसीजर की सिर्फ सवाल? यस, कंप्लीट. सर You want to repeat the complete procedure or only the question? I'm not getting you. सर Yes. आई थिंक ये राइट हो सकता क्योंकि सिर्फ एक ही अलग आ रहा है ना, मतलब तीन अप्रोक्सीमेटली पास पास में ही है जो मतलब हमने जो 4% के ये निकाले कंसंट्रेशन। चार के तो काफी पास में है, एक का ही आजू बाजू खराब है. भाई तो ये करेक्ट हो सकता क्योंकि सर ये सेकंड पैरा में लिखा है कि ज्यादा वेरिएशंस नहीं है ना, मतलब सब जन एकदम दूर दूर नहीं है, मीन्स 4 जन है पास, एक ही जन दूर है सिर्फ। सो आई थिंक ये राइट हो सकता। हाँ, but see, in the second paragraph there is a one statement is given. Okay, what is this statement? That an amount, okay, शुड determinant नॉट should not vary among themselves by more than 3 3 parts पार्ट। per thousand. ठीक है, हाँ 3 parts per thousand मतलब आपको पता है पीपीटी, हाँ पीपीटी। यानी 3% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. हाँ ठीक है, अब ये पहले चार तो 3% के अंदर है, लेकिन ये जो है ये परसेंट के बाहर चले गया है. ठीक है, सो ऑन एन एवरेज भी अगर आप चेक करने जाएंगे, सो इट विल लाई आउटसाइड द लिमिट. इट विल लाई आउटसाइड द लिमिट. तो आपको फिर से रिजल्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. यू कैन सी इफ लार्जर वेरिएशंस आर शोन देन द डिटर्मिनेशन मस्ट बी रिपीटेड until a satisfactory concordance is obtained. तो आपको फिर से रिजल्ट रिपीट करना पड़ेगा. कब तक रिपीट करना पड़ेगा? जब तक आपका कॉन्कर्डेंस जो है, एग्रीमेंट जो है अमॉन्ग द रिजल्ट ये सेटिस्फाइड नहीं करता दिस लिमिट. ओके, सर ये डुप्लीकेट एंड एटमोस्ट ट्रिप्लीकेट मतलब डबल डबल और तीन तीन बार मतलब यस, एक ही पर्सन को 4 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, फिर उसका एवरेज लेना चाहिए हमें, रेदर देन टेकिंग अ सिंगल वैल्यू. मतलब सर जब फोर्थ पर्सन का जो नहीं आया सिर्फ उसी का रिपीट करेंगे ना? नहीं नहीं, सबको करना चाहिए ना, एक का क्यों करेंगे? हाँ पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल डिटर्मिनेशन। दैट इज़ अ पैरेलल. लेकिन ये सब चीज़ साइमल्टेनियसली ही करनी है, एक ही दिन एक समय पे करनी है. ऐसा नहीं कि आज एक ने किया, कल दूसरे ने किया, परसों तीसरे ने किया. ओके, ऑल्दो दैट कैन बी पॉसिबल. ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ वैलिडेटेड बाय यूजिंग अ वन टर्म. नाउ दिस टर्म इज़ कॉल्ड एज ए प्रिसीजन. ठीक है, ये सब चीज़ें जो फाइंड आउट की जाती हैं इसको क्या बोला जाता है? प्रिसीजन. तो व्हाट द प्रिसीजन सेज दैट द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट्स अमॉन्ग देमसेल्व्स. तो जितने भी रिजल्ट्स हैं इनके एग्रीमेंट कितना है, इनका कॉन्कर्डेंस कितना है, तो ये वाया टर्म दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन चेक किया जाता है. ठीक है, विल कम टू द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट सेइंग दैट यू शुड चेक द प्रिसीजन ऑफ योर रिजल्ट. ठीक है, इतना याद रहेगा अभी के लिए. और आपको समझ में आया रनिंग अ पैरेलल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कि एक ही प्रैक्टिकल को 5 लोग करेंगे मिनिमम. ठीक है, साइमल्टेनियसली एट द सेम एनवायरमेंटल कंडीशन विद द सेम रिएजेंट एंड ऑल द प्रोसीजर आर ऑल्सो सेम. ठीक है, आगे बढ़े. Shall we Yes, go sir. ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So in last line you can see the agreement merely shows that accidental errors or the variation of determinate errors are the same or nearly the same in a parallel determination. Now next is standard addition method. Now what is this standard addition method? Says that suppose आपको फिर से हम वो एस्पिरिन का एग्जांपल लेते हैं. Suppose it was given you the sample of aspirin. ठीक है, आपने उसके ऊपर एक मेथड परफॉर्म की. कौन सी मेथड परफॉर्म की? यू हैव परफॉर्म द टाइटरेशन मेथड. ठीक है, सो यू हैव परफॉर्म टाइटरेशन मेथड एंड यू कम टू द सम रिजल्ट्स. और कितना रिजल्ट मिला आपको?
सपोज यू गॉट 98.25% वेट बाय वेट, इतना आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ एस्पिरिन। ये जो आपने परफॉर्म किया था, ये किसके ऊपर परफॉर्म किया था? यू हैव परफॉर्म दिस ऑन द सैम्पल ऑफ एस्पिरिन। नाउ व्हाट दिस मेथड इज दैट, आप फिर से ये प्रैक्टिकल करो, ठीक है। ये क्या कहता है, आप फिर से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। नाउ इन दिस टाइम यू टेक सैम्पल ऑफ एस्पिरिन प्लस व्हाट, स्टैंडर्ड एस्पिरिन। इसके अलावा आपको क्या लेना है? स्टैंडर्ड एस्पिरिन लेना है, ठीक है। एंड यू हैव टू परफॉर्म द सेम मेथड by using again same titration and find out what to find out. Find out the percentage content, and in this case suppose you find out it as 198.20, ठीक है। पहले कितना मिला था आपको यहाँ पे? 98.25 98.25 मिला था, अभी 45 मिला था, ठीक है। अभी कितना मिल रहा है आपको? 198। क्यों मिला ये एक्सेस? व्हाई यू गॉट द एक्सेस? सर वो यस मतलब स्टैंडर्ड एस्पिरिन भी है ना उसमें, इसलिए। हाँ, इसमें हमने स्टैंडर्ड एस्पिरिन भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो नेचुरली जो स्टैंडर्ड एस्पिरिन है वो ऐड करने की वजह से क्या हो गया? परसेंटेज इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। ये तो हमें भी समझ में आता है। सो स्टैंडर्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय स्टैंडर्ड? नियरली 100%, हाँ यस सर। बिकॉज Yes, sir. स्टैंडर्ड तो 100% ही होना चाहिए, and in our case also it is giving you 100%. So what we can say that the method is accurate. So इस तरीके का जो प्रोसीजर रहता है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड. So now you can read the paragraph. What it is said that a known amount of a constraint which is being determined. Known amount of constraint which is being determined, इसका मतलब ही क्या होता है? It is nothing but a sample जो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, is added to the sample which is then analyzed for the, sorry मैंने यहाँ पे गलत बताया, it is called as a standard. So known amount of constraint being determined means जो पहले से पता है कितना परसेंट हो सकता है, जो ऑलरेडी पहले से डिटरमाइन हो चुका है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड, इज एडेड टू अ सैम्पल. तो इसको किस में ऐड करना है? सैम्पल में ऐड करना है, विच इज़ देन एनालाइज फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रेंट प्रेजेंट. द डिफरेंस बिटवीन द एनालिटिकल रिजल्ट फॉर द सैम्पल विथ एंड विदाउट द एडेड कंस्ट्रेंट गिव्स द रिकवरी ऑफ द अमाउंट. तो अगर मैं 198 में से माइनस करता हूँ 98.45, तो ये मुझे क्या प्रेजेंट करके देता है? इट गिव्स मी द रिकवरी. तो रिकवरी कितना मिल रहा है? नियर अबाउट 100%. सो इफ द रिकवरी इज सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है एंड प्रोसीजर ओके है, वी कैन यूज दिस मेथड. सो द मेथड इज यूजुअली अप्लाइड फॉर फर्दर, ठीक है. तो इस तरीके की जो मेथड रहती है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड. Now after the standard addition method, 3 और method है, but this is not going to be used by you, means this is not applicable for the titration method. Okay, now the first one that you can see, the internal standard method is used for the spectroscopic and chromatographic technique. तो ये जो next subject है pharmaceutical analysis 2, वहाँ पे आप देखेंगे how to use this internal standard method. Okay, so अभी के लिए जैसे हम focus करते हैं what is the internal standard method. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? We will going to add one reference material, will have a one peak for the reference material, and we will have a one peak for the standard material. The position of the reference peak to that of the sample peak is measured, the ratio is calculated, and on the basis of that we can come to a certain conclusion. So इस तरीके की जो मेथड रहती है that is called internal standard method.
Then amplification method. Now where this amplification is method is used where the sample amount is very small. It is not possible to determine the sample by using that amount which is provided. So in this kind, what we are going to perform, we will going to amplify the concentration of the sample. Okay, so amplification can be possible by making certain reaction. Suppose A reacts with B and produces C plus D. सपोज ऐसा होता है. एक रिएक्शन है आपके पास A प्लस B, इट गिव्स यू, ओके, क्या देता है ये आपको, इट गिव्स यू 2C, मतलब डबल हो गया. तो जितने इन टर्न 2C व्हेन रिएक्ट्स विथ 2C reacts with B, again it gives 4C, then 4C further reacts with B, in turn it gives 8C. So आप क्या कर रहे हैं, आपका जो सैंपल था, सैंपल क्या था आपका इस केस में, जो सैंपल इज A. ओके, तो सैंपल का जो कॉन्सेंट्रेशन था काफ़ी कम था, बट with the help of certain reagent you have amplified the concentration. ठीक है, सो ये जो एम्पलीफिकेशन होता है, सो दैट इज़ व्हाट द मीन इज़. अब इसको हम डिटरमाइन करेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे ए के साथ. ठीक है, 8C को डिटरमाइन करेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे ए के साथ. तो इस तरीके की जो मेथड रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन मेथड. So in this determination in which very small amount of a material is to be measured, this may be beyond the limit of apparatus available. So in these circumstances, if a small amount of material can be reacted in such a way that every molecule produces 2 or more molecules of the some other measurable material, the resultant amplification may then bring the quantity to be determined within the scope of the apparatus or the method available. So this is called amplification method. The next is the isotopic dilution method, that is the last method to minimize the systematic error. In this case, what we are going to do, we are going to use some radioactive isotope. A known amount of the element being determined containing a radioactive isotope is mixed with a sample and the element is isolated in a pure form which is weighed or otherwise determined. ठीक है, सो क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज आपके पास में अभी फिर से एक रिएक्शन है, यू हैव ए रेडियो एक्टिव, ए आर मतलब ए रेडियो एक्टिव है, एंड यू हैव अ ए विदाउट एनी रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, इसको रिएक्ट किया बी के साथ. ठीक है, इसको रिएक्ट किया बी के साथ. सपोज हम ऐसे लिखते हैं ए दैट इज रेडियो एक्टिव एंड बी. मुझे वर्ड फाइल में समझाना पड़ेगा.
Okay, can you see the screen now? हाँ सर Yes, सर sir. Okay. What Yes, it sir. says that Yes, sir. आपको एनालिसिस यस करना सर है ए का. आपको किसका एनालिसिस करना है? ए का एनालिसिस करना है. ठीक है. सो आप कैसे करेंगे? So what you will going to do? A known amount of element being determined containing a radioactive isotope is mixed with a sample. Sorry, sample is B. B is going to be your sample. सो बी आपका क्या है? सैम्पल है जिसको डिटरमाइन करना है. तो आई एम मेकिंग इट रेड कलर. ठीक है. एंड ए आर, ये मुझे पहले से पता है ए आर का कॉन्सेंट्रेशन, सो आई एम मेकिंग इट एज ए ग्रीन कलर. ठीक है. सो नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट, ए का कॉन्सेंट्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है. ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है. मुझे एनालिसिस किसका करना है? मुझे एनालिसिस करना है बी का. ठीक है. सो मैं अच्छा, एक और खास बात है. ए इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ए इज़ वॉट? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. एंड वी नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए and we want to analyze the concentration of B. So what we are going to do? We will react this B with a radioactive substance जिसका concentration मुझे already पता है. So this radioactive substance I am having in excess. Excess का मतलब होता है बहुत सारा मेरे पास प्रेजेंट है. ओके. सो आई एम हैविंग इन excess. एंड बी मेरे लिए क्या है? अननोन है, जिसका मुझे क्या नहीं पता है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है. सो बी इज अननोन. ठीक है. अब मैंने क्या किया? ए को बी के साथ में रिएक्ट कर दिया. आई विल गेट ए बी. कितना प्रोड्यूस होगा ए बी, मुझे ये बताओ. मेरा सवाल पहले समझ लो. आई एम हैविंग A, which is a radioactive substance, and I want to determine B, which is a unknown substance, ठीक है, with unknown concentration. But I know that when A combines with B, it produces AB, that is a product. तो AB कितना प्रोड्यूस होगा? That will produce as per the requirement of B, means B का जितना concentration होगा, suppose X concentration होगा B का, तो AB भी उतना ही प्रोड्यूस होगा ना. Yes, sir. ना, बी का जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ए भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास ए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में है. तो रिएक्शन लिमिट कब हो जाएंगी? रिएक्शन तब लिमिट हो जाएंगे जब बी कम्प्लीटली ए के साथ में रिएक्ट हो जाएगा. ओके. बी जो था, इसको डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास में पहले कोई मेथड अवेलेबल नहीं थी. बट आई हैव अ वन पर्टिकुलर मेथड, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस का ना रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट कर सकता हूँ. इस ए बी का क्या मेजर कर सकता हूँ? आई कैन मेजर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस ए बी. ओके. सो आई कैन मेजर रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए बी. ठीक है. और ए बी की अगर रेडियो एक्टिविटी मेजर कर दी तो मुझे इससे क्या पता चलेगा? आई कैन कोरिलेट. ठीक है. इस केस में इवन इसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर की जा सकती है, विच इज़ इन एक्सेस. सो इस केस में देखो, आप दोनों की रेडियो एक्टिविटी मेजर करोगे. ए जो फ्री फॉर्म में है उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करोगे, एंड ए जो बी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है उसकी रेडियो एक्टिविटी मेजर करोगे. दोनों के बीच में डिफरेंस होगा. पहले केस में जो रेडियो एक्टिविटी होंगी वो कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द ए रहेंगी, एंड सेकेंड इसमें जो रेडियो एक्टिविटी रहेंगी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. सो द रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय दिस कॉम्प्लेक्स विल गोइंग टू give me the information regarding the concentration of B. तो इस तरीके का जो एनालिसिस रहता है ये किया जाता है. सो नाउ यू कैन रीड द पैराग्राफ. अ नोन अमाउंट ऑफ एलिमेंट बीइंग डिटरमाइंड. तो A इज़ अ नोन अमाउंट ऑफ एलिमेंट.
तो दिस रिप्रेजेंट अ ग्रीन containing a radioactive substance is mixed with the sample. तो इसको किसके साथ हमने मिक्स किया, इसको सैंपल के साथ में मिक्स किया. एंड द एलिमेंट इज आइसोलेटेड इन अ प्योर फॉर्म. नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कॉम्बिनेशन. तो एलिमेंट हमारा आइसोलेट हो गया बी. सपोज ये पहले अगर कंबाइंड था किसी के साथ, तो अभी हमने बी आइसोलेट कर लिया इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है, विच इज़ बीइंग वेट और अदरवाइज डिटरमाइंड. तो इसको वे करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं और बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी अदरवाइज डिटरमाइन यूजिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, उससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं. द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द आइसोलेटेड मटेरियल इज मेजर्ड. तो वही सेकेंड लाइन में यही बता रहा है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द आइसोलेटेड मटेरियल इज मेजर्ड एंड कंपेयर विद दैट ऑफ द एलिमेंट. तो हम दोनों की रेडियो एक्टिविटी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. एंड द वेट ऑफ द एलिमेंट इज इन द सैम्पल कैन देन बी कैलकुलेटेड. तो इससे हम बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो मेथड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ अ मेथड, इट इज कॉल्ड एज ए आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड. ओके, सो ऑल्दो आप यूज़ नहीं करने वाले, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड. क्लियर है, समझ में आया? यस जी सर. यस यस सर. सर. हाँ सर. ठीक है, मैं इसको ना कॉपी करके प्रेजेंटेशन में कर दूँगा. ठीक है, इसको मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा. So if you got the point, then it's okay. We conclude the errors and its minimization. Any questions? So welcome. हाँ बच्चा, कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं. सर कॉन्कोर्डेंट मतलब नियरली सेम ना? कॉन्कोर्डेंस का मतलब होता है यस, नियरली सेम, आइडेंटिकल, है ना, आसपास में रहते हैं, सो हम उसको बोलते हैं कॉन्कोर्डेंस. सर जैसे किसी पर्टिकुलर